ठीक है. The length of the sides of a triangular field are 11 meter, 60 meter and 61 meter. What is the expenditure for growing grass in the field at the rate of 10 per meter square? तो इसमें क्या गिवन है? ट्रायंगुलर फील्ड है. ओके, फील्ड इज अ सी ट्रायंगुलर फील्ड. ट्रायंगुलर का मतलब ऐसा फील्ड रहेगा, ट्रायंगुलर. ओके, एंड देयर साइड्स आर गिवन 11, 60 and 61. Okay, first we have to find out the area of this triangle and then multiply that area by 10 because rate is given 10 per meter square, and you know that area is always in square meter or meter square. Now see, sides are 11, 60, 61, and all of you know that 11, 60, 61 is a Pythagorean triplet or Pythagoras triplet. See, 11, 60, 61, 11, 60, 61 is a Pythagorean triplet or Pythagorean triplet, and therefore this angle opposite to greatest side. Remember, जो बड़ा साइड कौन सा है? 61. इसके अपोजिट एंगल कौन सा? ये. दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. ओके, दिस एंगल इज 90 डिग्री, एंड therefore suppose this triangle is A, B and C. How to find out area of this triangle? Half into base into height. Area of triangle ABC formula is half multiplied by base. Area of triangle ABC is half into base into height. Okay, this is the formula for area of triangle. Now here half into, suppose this BC is base, then AB is height. Okay, now half into BC into AB. Now tell me, half BC is how much? 60. AB is 11. Now 2 1s are 2 and 2 3s are 6. That is 30 multiplied by 11. Answer is 11 3s are 330 square meter. Okay, and rate is given 10 meter square. Okay, rupees 10 per meter, that is given, and therefore expenditure is equals to, how to find out expenditure? Expenditure is equals to 330 multiplied by 10. Okay, 10 rupees per square meter, that is 3300. This much of rupees, that is the expenditure. Okay, see, answer is there, rupees 3300. It is option number 3. Then next question is, in the figure 4 congruent circles with radius 7 cm are shown. ये हर एक सर्कल का रेडियस कितना है? 7 है. ओके, तो दिस मच पार्ट इज 7. ओके, एंड दिस मच पार्ट इज ऑल्सो 7. सिमिलरली दिस पार्ट इज 7, दिस पार्ट इज 7. Similarly here BC, this is 7 and this is also 7. Here also same thing, 7 and 7. Is it right? Then what is the area of shaded region? Shaded का मतलब है बीच का जो ब्लैक पार्ट है, इसका एरिया हमें क्या करना है? निकालना है. ठीक है. Now see how to solve this problem. First here AB is equals to 7 plus 7 14. Similarly BC is equals to 7 plus 7 14. DC is also 7 plus 7 14, and AD is also 7 plus 7 14. I write here, therefore AD is equals to, AB is equals to, BC is equals to, CD is equals to 7 plus 7, that is 14 centimeter. Then how to find out this area of square? Area of square is equals to side square. Side of square is 14, and therefore 14 square is 196. That is the area of square. Now see this part, this much part, suppose this part from A, this part is known as, what is that? This is a sector. Okay, and we have to find out area of this sector. How to find out area of sector? Area of sector, that is, this angle is how much? This angle is theta. Theta means this is 90 degree. Why it is 90 degree? See, theta is equals to 90 degree. Why 90 degree? Because angle of square is always 90 degree. Each angle of square is 90 degree, and therefore this theta is 90 degree. How to find out this area of sector? Now area of sector
is equals to, what is the formula for area of sector? Theta upon 360, okay, into pi r square. Theta upon 360 into pi r square. Now value of theta is 90 upon 360 into value of pi is 22 upon 7, and value of r is, what is r here? R is 7, no? See, this is the r, or this is r here. R is 7, and 7 square means 7 multiplied by 7. How many times? 2 times, that is 7 square. Now see, this 7 and this 7 gets cancelled. Then this 0 0 gets cancelled. 9 1s are 9, 9 4s are 36. Again 2 2s are 4. Here it is 2 1s are and 2 1s are. Then 11 multiplied by 7. So answer is 11 multiplied by 7 divided by 2. Okay. Now here again 2 1s are 2. 2 5s are 10. Again 2 5s are 10. That means 5.5 multiplied by 7. Okay. 5.5 multiplied by 7. And 5.5 multiplied by 7, answer is, here 7 5s are 35, 3 carry, 7 5s are 35 plus 3, 38.5 square centimeter. That is the area of this one sector. Okay. Now how many sectors are there? 1, 2, 3 and 4 sectors. Okay. And therefore we have to find out the area of 4 sector. I write here, therefore area of 4 सेक्टर. ये हमने एक सेक्टर का निकाला. अभी 4 सेक्टर का कैसा होगा? इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं. दैट इज 4 इंटू 38.5. दैट इज द एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स. एंड इफ वी मल्टीप्लाई देन वी गेट आंसर एज 1540. एंड दिस पॉइंट इज देयर, देयरफॉर 154 स्क्वायर सेंटीमीटर. दैट इज द एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स. ओके. 154 square centimeter. This is the area of 4 sector. Now how to find out area of shaded region? अभी देखो हमने क्या निकाला? एरिया ऑफ 4 सेक्टर निकाला है. उसके बाद एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला. ठीक है. अगर मैं समझो सपोज ये एरिया ऑफ क्या है? स्क्वायर है. एरिया ऑफ स्क्वायर से ये जो 1 2 3 4 सेक्टर अगर माइनस करते तो हमें क्या मिलेगा? एरिया ऑफ दिस shaded portion. Then how to find out area of shaded portion? Area of the square minus 1 2 3 4. That is area of 4 sectors. Okay. Now see, area of shaded region is equals to area of square minus area of 4 sectors. Now area of square is here 196. 196 minus area of 4 sectors are 154. That is 196 minus 154, and we get answer as 42 centimeter square or square centimeter. Now see your answer 42 centimeter square. Okay. Then next question is, the length and breadth of a hall are 18 meter and 15 meter. How many square tiles of length 25 centimeter will be required to fit on the floor of the hall? Okay. ये question है. Now see, length of hall is given, that is 18 meter. And breadth of hall is given, that is 15 meter. You know that 1 meter is equals to 100 centimeter. That means 18 meter is equals to 18 into 100, that is 1800 centimeter. Similarly, breadth of hall is equals to 15 meter. That is 15 into 100, that is 1500 centimeter. और टाइल्स कितना बिठाना है हॉल में? 25 सेंटीमीटर. टाइल्स कैसा है? स्क्वायर टाइल्स है. ओके. और उसका लेंथ भी 25, ब्रेड भी 25. तो एरिया ऑफ स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर, ये तो मालूम है. ठीक है. और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं? लेंथ इंटू ब्रेड. अगर मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेता हूँ और उसको ये 1 टाइल्स का एरिया से क्या करता हूँ? डिवाइड करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? नंबर ऑफ टाइल्स. ओके. Now see, total number of tiles required is equals to area of hall. ये हॉल का एरिया, that is rectangle का एरिया. ठीक है. Divided by area of 1 tile. 1 tile का एरिया means area of square. Okay. Now formula for area of rectangle is length multiplied by breadth, and area of square is side square. Is it right?
Now length is how much? 1800 and breadth is 1500 divided by area of square is 25 into 25 because side of square is 25. Okay. Now here 25 1 ja 25, 25 6 ja 150, that is 60. Is it right? Again here 25 1 ja 25, 25 6 जा 150. इज इट राइट? कितना बचता है? 30. 25 6 जा 150, 25 7 जा 175. इज इट राइट? एंड अगेन 25 2 जा 50. ओके, दैट इज 72 एंड योर आंसर इज 72 मल्टीप्लाई बाय दिस 60. नो, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 1 है तो कुछ नहीं. So 72 multiply by 60 and you get answer as 4320 tiles. Okay, तो कितना टाइल्स चाहिए? 4320. कैसा है देखो, 6 2 जा 12, 1 कैरी, 6 7 जा 42 plus 1 43, that is 4320 tiles is your last answer. So your answer is 4320, that is option number 4 is your correct answer. Now next question is ABCD is a rectangle. AB is 24. See, AB is 24. BC is 18. Where is BC? Is here. This BC, whole BC is 18. A sector of radius 7 cm is cut off each corner of rectangle. ये सेक्टर देखो 7, इधर भी कितना रहेगा तो 7, ये भी 7 रहेगा बराबर, और ये भी 7. दिस इज ऑल्सो 7, सेम सेक्टर 7 सेंटीमीटर का क्या किया उसने? कट किया ईच कॉर्नर. व्हाट इज द एरिया ऑफ रिमेनिंग फिगर? मीन्स अंदर का तो व्हाइट कलर का पोर्शन है, इसका एरिया निकालना है. ठीक है, वेरी इजी. देखो अगर मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालता हूँ, देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालता हूँ, ये जो सेक्टर है ये चारों सेम है ना, तो ये क्या हो गया? 1/4 मीन्स 1/4. अगर ये चारों को मैं मिलाता हूँ, देखो इकट्ठा करता हूँ चारों को, तो क्या बनेगा? that forms one circle. here देखो ये इधर का इधर लिया मैंने, समझो. हाँ, एक ये 1 2 3 और 4 चारों को इकट्ठा किया तो एक सर्कल बनता है बराबर. तो अगर मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालता हूँ, उसमें से एरिया ऑफ सर्कल माइनस करता हूँ, लेकिन ये सर्कल का रेडियस कितना आएगा? सी वेरी इजी, 7 सेंटीमीटर, दैट इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल. तो मुझे क्या मिलेगा? ये रिमेनिंग जो पार्ट है व्हाइट कलर का, उसका क्या मिलेगा? मुझे एरिया मिलेगा. ठीक है, समझ रहे कैसा करना है? नाउ सी हियर, दिस इज रेक्टेंगल ABCD. वे टू फाइंड आउट फर्स्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD. एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला इज लेंथ इनटू ब्रेड. लेंथ इज गिवन, दैट इज 24 and breadth is given, that is 18. 24 multiplied by 18, answer is 432 centimeter square. Since area is there, therefore centimeter square, or you can say square centimeter. Okay, now how to find out area of circle? Area of circle formula is pi r square. Now value of pi is, you know value of pi 22 upon 7 into value of r. ये r कितना है देखो 7, that is 7 multiplied by 7. Why I take 2 times 7? Because r square is there, and therefore this 7 and this 7 gets cancelled. You get answer as 22 into 7. 22 multiplied by 7, answer is how much? 154 square centimeter or centimeter square. ठीक है, तो अभी मैंने क्या बताया था, हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल से एरिया ऑफ स्क्वायर क्या करेंगे? माइनस, एंड यू गेट आंसर, दैट इज एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन. आई राइट एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन is equals to area of quadrilateral ABCD, that is area of rectangle, minus area of circle. Okay, area of rectangle कितना आया है देखो 432. okay, minus 154, and if we subtract this, we get answer as 278 centimeter square. okay, 278
सेंटीमीटर स्क्वायर और स्क्वायर सेंटीमीटर, और यू कैन राइट इट एज स्क्वायर सेंटीमीटर, दोनों राइट है। स्क्वायर सेंटीमीटर लिखते तो भी राइट है और सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते तो भी राइट। सी हियर आंसर 278 centimeter square, that is option number 3. Okay, now next problem is the area of a circle with center O is 308 centimeter square. Find the perimeter of the shaded semicircle from the following figure. अभी देखो एरिया ऑफ सर्कल गिवन है, वेरी इजी है। एरिया ऑफ सर्कल इज 308 and we have to find out the perimeter of the shaded semicircle. Perimeter, how to find out perimeter? ये जो है ये साइड बाउंड्री, ओके, ये प्लस दिस इज व्हाट डायमीटर। ओके, डायमीटर कैसा लिखते हैं? डी इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला है? डी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, ओके, प्लस इसको क्या बोलते हैं हम? सेमी सरकमफेरेंस और सेमी पेरीमीटर। सरकमफेरेंस का हाफ करते हैं तो क्या आता है? पाई आर। दैट मीन्स ये पूरा ये जो शेडेड पार्ट है इसका एरिया निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये डायमीटर लेना पड़ेगा, दैट इज 2r, प्लस ये इसका कैसा आएगा? सरकमफेरेंस का सर्कल का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर बराबर 2 पाई आर। हाफ ऑफ दैट इज सेमी का मतलब हाफ है ना, तो इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे। हाफ मीन्स तो 2 कट होगा तो क्या बचेगा? पाई आर। दैट मीन्स 2r प्लस पाई आर, दैट इज द व्हाट इज दैट? perimeter of the shaded portion. Okay, now see how to solve this. Now see area of circle that is given. Okay, area of circle is given. What is the formula for area of circle? Pi r square. Okay, and area of circle is given, that is 308 that is given. 308 is equals to pi r square, right? Now tell me value of pi is 22 upon 7 into r square is equals to 308. Is it right? Now r square is equals to 308 as it is. ये 7 डिवाइड है तो इधर क्या होगा? मल्टीप्लाई, एंड 22 मल्टीप्लाई गेट्स डिवाइड। ओके, डिवाइड होता है वो मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई रहता है वो डिवाइड होता है, बराबर। तो अभी इधर आंसर क्या आएगा? 22 1 जा 22, इधर करते 308 डिवाइडेड बाय 22, 22 1 जा 22, कितना बचता है? 8। ओके, 22 4 जा तो इधर क्या आएगा? 14 आएगा, ठीक है, 14 इंटू 7, ओके, 14 7 जा कितना आता है? 14 7 जा दैट इज 98. ओके, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 98. इज इट राइट? Now r, how to find out r? We have to take square root of this, square root of 98. अभी 98 कैसा बना है देखो, 49 2 जा 98. Is it right? Why I take 49 2 जा? Because see 49 is a square number. Square number का मतलब क्या मालूम है? देखो 7 का स्क्वायर करते हम तो 49 आता है, तो 49 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 7. Is it right? Now see r is equals to square root of 49 is 7 एंड ये 2 का स्क्वायर रूट नहीं आ रहा है, तो नहीं आता है तो उसको क्या करते हैं हम? अंडर रूट 2 ऐसा लिखेंगे, ठीक है, दैट इज 7√2 सेंटीमीटर, दैट इज योर आर। इज इट राइट? आर मिला दे। अभी हमें क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ दिस सेमी सर्कल। ओके, पेरीमीटर ऑफ दिस शेडेड पोर्शन, ओके, दैट इज पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, अभी फॉर्मूला हमने क्या देखा था पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का? पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल फॉर्मूला इज पाई आर प्लस 2r, इसमें कॉमन क्या आएगा? r, तो क्या बचता है? पाई प्लस 2। ओके, पाई प्लस 2 बचता है, और पाई प्लस 2 का वैल्यू मैंने बताया था आपको, ध्यान में रखना है। पाई प्लस 2 का वैल्यू कितना है? पाई प्लस 2, वैल्यू ऑफ पाई प्लस 2 इज 36/7. रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, वैल्यू ऑफ पाई प्लस 2 इज 36/7. तो r कितना है हमारा? देखो r अभी निकाला हमने 7√2, ओके, मल्टीप्लाई बाय ये कितना है? 36/7. तो 7 गेट्स कैंसर, तो क्या बचता है आंसर? 36√2. ओके, योर फाइनल आंसर इज 36√2 स्क्वायर सेंटीमीटर,
that is your last answer. That is perimeter of this semicircle is 36√2. ये समझे आपको π+2 का वैल्यू मैंने इसके पहले भी बताया 36/7, ये बाहर करके ही रखो, नहीं तो इधर फिर एक बार बताता हूँ। पाई का वैल्यू कितना रहता है, देखो वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 प्लस 2 here 2/1, 22 1 जा 22 प्लस 7 2 जा 14/7. ओके, 22 प्लस 14/7 that gives 36/7. Understood? Now see answer is 36√2. Okay, shaded semicircle, perimeter of shaded semicircle is 36√2. Now next problem is there are two wires of length 44 सेंटीमीटर each. दो वायर है, उसका लेंथ कितना है 44 सेंटीमीटर. A circle is formed from one wire and a square is formed from the other. Find the difference in the areas of two figures so formed. Okay, ये 2018 में आया था, ये भी ऊपर वाला 2018 में आया था. अभी देखो टू वायर्स है, दोनों वायर का लेंथ कितना है 44 ही है. ओके, इसका भी लेंथ 44. ओके, एंड दिस वायर ऑल्सो लेंथ 44, दोनों का लेंथ 44. एक से हम क्या बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे. तो ये वायर का लेंथ मीन सर्कल का क्या होगा, सर्कमफेरेंस, इज इट राइट. और दूसरे वायर से क्या बनाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे. तो स्क्वायर का ये जो पूरा पार्ट है इसको क्या बोलते हैं हम, पेरीमीटर. ओके, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज गिवन एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज गिवन. ओके, एंड वी हैव टू फाइंड आउट एरियाज ऑफ टू फिगर्स. इसका सर्कल का एरिया निकालना है और स्क्वायर का भी एरिया निकालना है. ठीक है. नाउ सी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल फॉर्मूला इज 2πr. सर्कमफेरेंस क्यों लिया मैंने, वायर से वो सर्कल बनाया है, तो ये क्या हो जाएगा सर्कल का सर्कमफेरेंस. ओके, नाउ दैट इज गिवन. लेंथ कितना है 44 है, तो मैं इधर क्या लिखूंगा 44 इज इक्वल्स टू 2 इंटू वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 इंटू r. इज इट राइट. नाउ हाउ टू फाइंड आउट r. r इज इक्वल्स टू, सी यार ये 7 डिवाइड है तो इधर क्या होगा मल्टीप्लाई, और जो मल्टीप्लाई है ऊपर है वो नीचे जाएगा, तो 44 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22. नाउ हियर 22 1 जा 22 and 22 2 जा 44. अगेन दिस 2 गेट्स कैंसल, तो r इज इक्वल्स टू 7. ओके, तो सर्कल का रेडियस कितना आया हमारा, सर्कल का रेडियस r इज इक्वल्स टू 7. देन हाउ टू फाइंड आउट एरिया ऑफ सर्कल. एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू नो फॉर्मूला पाई r स्क्वायर. इज इट राइट. नाउ वैल्यू ऑफ पाई इज अगेन 22/7 इंटू r इज 7 into 7 2 times. Why it is 2 times? Because see here value of r is known. Now 7 gets cancelled and area of circle is how much? Area of circle is 22 into 7, that is 154. Okay, that is 154 square centimeter or centimeter square. Again these sides here, this area of square, we have to find out area of square. How to find out area of square? First वायर से बनाए ना स्क्वायर, वही बड़ा वायर था उससे स्क्वायर बनाए, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर का पेरीमीटर. और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला क्या रहता है 4 इंटू साइड. अभी पेरीमीटर गिवन है कितना है 44. ठीक है, तो 44 इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड. इज इट राइट. नाउ टेल मी साइड इज इक्वल्स टू क्या आएगा, साइड इज इक्वल्स टू 44. ये 4 मल्टीप्लाई गेट्स डिवाइड, 4 1 जा 4 1 जा 4 1 जा, दैट इज 11 सेंटीमीटर इज द साइड ऑफ स्क्वायर. ओके, नाउ हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला इज एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर. इज इट राइट. एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है साइड स्क्वायर. तो साइड कितना है हमारा स्क्वायर का 11 है, तो क्या आएगा 11 स्क्वायर. ओके, साइड 11, तो 11 का स्क्वायर कितना आता है 121 स्क्वायर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर. बट आवर क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड आउट डिफरेंस बिटवीन दीज एरियाज. ओके, तो डिफरेंस कितना आएगा देखो, पहला एरिया कितना है 154, सेकेंड एरिया कितना है 121,
तो 154 माइनस 121, तो आंसर कितना आएगा 4 माइनस 1 3, 5 माइनस 2 3, 33 सेंटीमीटर स्क्वायर और स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके, your answer is 33 centimeter square or square centimeter. This ends your topic number area, that is topic area. Okay, अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना. ठीक है.